अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो सबसे पहले कि मैं लाइव जाऊँ, यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम गोइंग टू से। सो इससे पहले कि मैं लाइव जाऊँ, लेट मी गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी कि मेरे साथ इस वक्त कौन कौन लाइव है। और आप में से वो लोग जो इस टाइम पे मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं, डू लेट मी नो कि आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू फ्रॉम अब्रॉड, या आपका ताल्लुक किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स या किसी भी विलेज से है, तो डू लेट मी नो। और जब तक आप ये सब कुछ लिखते हैं, आई जस्ट गो एंड चेक माई सेल्फ ऑन द अदर प्लेटफॉर्म सो आई कैन बी बैक इन अ जिफी। एंड ऑल्सो इन द मीन टाइम डू लेट मी नो कि आज के टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है। वट डू यू थिंक आई प्लान टू टॉक अबाउट? डू यू थिंक इट्स रियली पॉसिबल what I plan to talk about, or it's just a myth, it's not reality? So जो भी आप लोगों के ख्याल आते हैं, let me know in the comment box till I be back. Okay, so I can see myself live on the other side as well. Yes, I can see myself, I'm live over here, and let me see. Okay, where is it? Okay, it's over here. Yes, so it's clear, and आप में से I guess कुछ लोग अपने जो है prayers offer करे होंगे, but it's okay, आप offer कर लें and then you can come back and join this session. और अगर जो है किसी का मिस भी हो जाए तो then you obviously know कि after some time it's uploaded on Facebook and then it's subsequently going to be uploaded after 2-3 days on YouTube as well. So आप वहाँ पर भी वॉच कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई पार्ट रह गया है सेशन का, या किसी ने कुछ मिस कर दिया है, तो you can always join it and you can always gain value out of whatever I'm trying to offer over here. So you know what, let's just get to our topic and let's just jump into the topic. Okay, yes, it's 2 minutes up, so I'm not going to waste any time and let's just dig in the topic. So you know what, जब हम बात करते हैं ना balancing work and personal life, ठीक है, so this is a topic which I have discussed already, but today I'm going to add something new, something different, क्योंकि you know what, when I do sessions, तब जो है like I have or examples to offer to you, but as time passes, as you go through those things again and again, so new things are added and new values are added. Obviously आप जो है हर चीज़ जो है अपने ऊपर भी फेस कर रहे होते हैं, you are going through the same things, and then आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, they are also going through those similar stages या different stages. So everyone has to offer something, और कुछ ना कुछ वो offer कर देते हैं. So what I do is I pick up those things and obviously I do talk with them if I can share their views with the audience, with my audience obviously, ताकि उनकी भी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो सके और वो अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकें. So when we talk about work life balance, सबसे पहले तो let me ask you people, what do you think कि work life balance किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Do you think कि work life balance is possible, या it's just a myth, it's there's nothing genuine in it, या it cannot be applied? So आप लोगों का जो भी ख्याल है, you can let me know in the inbox, और मुझे नज़र आ जाएंगे आपके जो भी कमेंट्स हैं. और in the meantime I will offer you my insight कि what I think about balancing work and personal life and how do I take it. And so far, like how am I applying it into my own life, or has it helped? Yeah, it hasn't helped. Yeah, it's just a myth. People have different concepts about when we talk about balancing life and personal life. So everyone has their own point of view. But जो इंसान इस process से गुजरता है, like if you're a working person and then you have a family life as well, so आप जो है उन दोनों को किस तरह लेकर जा रहे होती हैं, that is a total different scenario, क्योंकि हर एक की जो है situation, हर एक के circumstances, हर एक की life जो है different होती है. Even आपका जो a workload है, that is also different. So we are going to talk about things जो कि as a professional and as a personal person, if you want to have a balance in your life, so what are those things जो कि आप apply कर सकते हैं. But first of all, let me clarify certain things. Like जब बात की जाती है कि वर्क लाइफ बैलेंस
इज़ इट पॉसिबल या इट्स नॉट पॉसिबल. सो सबसे पहले तो व्हाट देखने की ये चीज़ है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरीके से लेते हैं. यानी अगर हम सिर्फ बैलेंस की बात करें, व्हाट डू यू टेक, हाउ डू यू टेक बैलेंस एज. बैलेंस आपका क्या ख्याल है? इट इज़ समथिंग डेफिनेट, like mostly people would say कि okay, I'm waiting for your comments as well before pouring anything out and pouring my thoughts out. I want you to contribute. चलें जी, आप सिर्फ जो है सुनने वालों में से ना हो. I want you to contribute as well, ताकि मुझे भी पता चले आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं या जो अप्लाई करते हैं चीज़ों को, चाहे गलत ही अप्लाई करते हो पर करते तो है ना. सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोग किस तरीके से वर्क लाइफ को, अगर आप लाइक इफ़ यू आर वर्किंग एंड यू हैव अ पर्सनल लाइफ, तो उसको आप किस तरह बैलेंस करते हैं. या इफ़ यू आर जस्ट वर्किंग एंड यू डोंट हैव अ लाइफ, आई मीन नॉट अ पर्सनल, नॉट आई मीन यू हैव अ लाइफ बट नॉट अ पर्सनल लाइफ, सो उसको आप किस तरह बैलेंस करते हैं या किस तरह लेकर चलते हैं. सो ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं. बट एनी हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टन थिंग्स जो कि मैंने ऑब्जर्व किए हैं regarding people, how do they take balance. Like there are many people who think कि भाई जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो इट्स 50-50 बैलेंस. जिस तरह इक्विलिब्रियम पे होता है ना, बैलेंस होगा तो भाई आपका जो वेज है या जो रॉड है उस पर वो बैलेंस होगा. बट यू नो व्हाट, लाइफ में जो है वर्क लाइफ बैलेंस इस तरह नहीं चलता. यू कैन नॉट बैलेंस इट ऑन अ 50-50 स्केल. देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम जहाँ पर जो है चीज़ें जो है इट वुड बी सम थिंग्स वुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी. यानी हो सकता है कि वर्क की जो वेटेज है वो ज़्यादा हो एंड देन फैमिली लाइफ जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसकी वेटेज कम हो. बट देन देयर आर टाइम्स जब फैमिली लाइफ की वेटेज ज़्यादा होगी और वर्क की जो है कम होगी. सो बैलेंस जो है इट्स नॉट समथिंग कि भाई आप उसको जो है एक डिवीज़न बना दें कि भाई ये मेरा जो है प्रोफेशनल टाइम है, ये मेरा जो है घर का टाइम है, और उसमें आप जो है ना एक हाशिया खींच दें. सो उर्दू में वी वुड कॉल इट डिवीज़न, अ हाशिया, उसमें खींच दें. सो बेस्ट थिंग इज़ ट्राई टू इंटीग्रेट बोथ. जब आप दोनों को, चाहे आपकी जो है वर्क लाइफ है चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, इनको इंटीग्रेट करके चलेंगे तो तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. अब वो रिजल्ट्स आपको किस तरह मिलेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन जैसे जैसे हम प्रोसीड करते हैं. सो फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर कि बैलेंस डजंट ऑलवेज हैव टू बी द 50-50 रेशो. ठीक है. और देन यू हैव टू ऑल्सो नो दिस फैक्ट कि जो लाइफ है इट कम्स इन सीजन्स. जिस तरह जो है वी आर एक्सपोज टू डिफरेंट सीजन्स थ्रू आउट द ईयर, इन द सेम वे जो हमारी लाइफ है उसमें कभी कोई चीज़ जो है ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगी, कभी कोई और चीज़ उससे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगी. सो वी हैव टू टेक लाइफ इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज वेल. उसको सीजन्स की तरह हमने ट्रीट करना है. जिस तरह हर सीज़न में जो है एक नया जो है आपका एटीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड से ज़्यादा जो है यानी आपका जो एज कम्पेयर टू जो आपकी क्लोथिंग होती है या आपका जो लाइफस्टाइल होता है, दैट्स डिफरेंट इन एवरी सीज़न. सिमिलरली जो लाइफ के सीजन्स हैं उसमें भी आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो माइंड सेट है, दैट ऑल्सो नीड्स सम चेंजिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस, तो उसमें भी हम ये चीज़ें जो है हमें जहन में रखनी चाहिए. देन आपको जो है एक और जो चीज़ है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई जो रियलिस्टिक बैलेंस होता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल बैलेंस, जो मैं आपको कहती हूँ कि इंटीग्रेट करके लाइफ को चलें, दैट इज़ यू हैव टू लर्न टू एडजस्ट. जब आप जो है एडजस्ट करना चीज़ों के साथ शुरू कर देंगे तो आपको लाइफ जो है टफ लगनी वैसे ही बंद हो जाएगी. सो दिस इज़ द नंबर 1 थिंग जब हम मिथ्स और रियलिटी की बात करते हैं. अच्छा, अगर हम बात करेंगे भाई बैलेंस जो है, व्हाई डज बैलेंस बिकम इम्पॉसिबल, या हमें बैलेंस इम्पॉसिबल क्यों लगता है. ओके, आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. सो हुएवर यू आर, वेलकम टू माई लाइव सेशन. और आपके कोई भी सवालात हैं, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, तो यू कैन राइट दोज कमेंट्स इन द इनबॉक्स, और मैं जो हूँ आपके कमेंट्स जो है वहाँ से उठा कर पढ़ लूँगी और आपको एज पर रिक्वायर्ड आपको रिप्लाई भी कर दूँगी. सो वाई डू वी थिंक कि बैलेंस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि दिस इज़ समथिंग कि अगेन इट्स समथिंग रिलेटेड विद माइंड कि हम जो है चीज़ों को अपने लिए इम्पॉसिबल क्यों बनाते हैं. क्योंकि
ऑलवेज लाइक देर आर डिफरेंट थिंग्स जिसमें जो है हम अपने आप को इंगेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें बैलेंसिंग चीज़ों की करना मुश्किल लगता है। और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, देखिए आजकल तो जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, सो मोस्टली जो है पीपल आर ऑन लाइक देयर स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया, या वो नोटिफिकेशंस देख रहे होते हैं या ईमेल्स देख रहे होते हैं, यू नो द ऑल टाइम सिनेरियो लुक बिजी एंड डू नथिंग, वो वाली सूरत हाल आ जाती है। देन इसमें जो एक और चीज़ आ जाती है कि भाई पीपल हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, वर्क प्लेस से भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और यू नो होम से भी जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी किसी भी जगह से, चाहे वो आपका वर्क है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, तो उसमें आपको जो है बैलेंस को मैनेज करना मुश्किल होगा और आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, लाइफ आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। सो द थिंग इज़ कि लाइफ को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, लाइफ को आसान बनाना है, और उसके लिए दोनों चीज़ों को आपने इंटीग्रेट करना है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, और उसको आपने एक जो है ना बैलेंस में लेकर चलना है, ताकि कोई भी जो सूरत हाल है, चाहे वो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो आपको जो है ना ये ना लगे कि भाई क्या मेरे जो है सर पे थोप दी गई है और मेरे से मैनेज नहीं हो रहे। ठीक है, सो मैनेजमेंट की भी बात मैं आपको करूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि what kind of management is required over here. ज़मीर रुधानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन। अच्छा, देन अगेन जो है अगर जो है बैलेंस की बात की जाए कि वाई डू वी फील इम्पॉसिबल, कि बैलेंस हमें इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि देन अगेन जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, व्हेन यू आर स्क्रोलिंग, व्हेन यू आर माइंडलेसली कंज्यूमिंग कंटेंट, या आप जो है खामखा अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे होती हैं, देन यू हैव अ गिल्ट, और वो जो गिल्ट होती है, दैट गिल्ट कैन अकर इन द वर्क प्लेस में भी वो गिल्ट होगी, और वही गिल्ट आपकी घर पे भी होगी, क्योंकि यू आर अनएबल टू मेंटेन अ बैलेंस, यू आर अनएबल टू सी द रूट कॉज कि भाई कहाँ पर चीज़ें ओरिजिनेट करी हैं और कहाँ पर आपने उन पे काबू पाना है। दिस इज़ द रीज़न वाई ऑफन पीपल फील कि भाई बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाता, चाहे वो आपका प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है या आपका जो है घर का इन्वायरमेंट है। सो इसके लिए जो है व्हाट इज़ नेसेसरी, इसके लिए जो चीज़ नेसेसरी है दैट इज़ शिफ्टिंग योर माइंडसेट। और वो माइंडसेट आप किस तरीके से कर सकती हैं कि यू हैव टू लर्न टू अडेप्ट, यू हैव टू लर्न टू थिंक, टू इंटीग्रेट। जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को अपने जो पर्सनल लाइफ है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, बजाय कि उसमें एक जो है स्ट्रिक्ट जो है डिवीजन ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें। यस, वो आप जो है 100% लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, बट एट द सेम टाइम आप एक जो काम कर सकते हैं दैट इज़ यू कैन यू नो वॉट यू कैन प्रायोरिटाइज थिंग्स। अब प्रायोरिटाइजेशन में जो है आप हमेशा जो है प्रायोरिटाइज करेंगे क्वालिटी को ओवर क्वांटिटी को। अगर आपका वर्क है विच रिक्वायर्स क्वालिटी, ऑब्वियसली आप कहीं पर भी काम करते हो, नो वन वॉन्ट्स टू यू नो wants you as a person to deliver quantity, everyone is looking for quality. So प्रायोरिटाइज करना सीखें चीज़ों को, क्वालिटी पे प्रायोरिटाइज करें, क्वालिटी वर्क डिलीवर करें, चाहे आपका वर्क इन्वायरमेंट है, चाहे आपका पर्सनल इन्वायरमेंट है। पर्सनल इन्वायरमेंट में भी आप देखेंगे कि अगर आपने जो है घर में आपके जो 5 काम हैं और 5 में से कोई आपने 2 काम ठीक तरीके से कर लिए, तो वो जो 2 काम आपने ठीक तरीके से किए होंगे वो नज़र आएंगे, बजाय उसके कि आपने पाँचों के पाँचों काम कर लिए और वो जो है शोडी वर्क आपने किया। तो शोडी वर्क हर एक को नज़र आएगा, एंड नो वन इज़ गोइंग टू रिकग्नाइज दिस थिंग कि ओके भाई आपने जो है कितना टाइम लगा कर जो है छोटी वर्क ही किया हो, बट ये है कि वो सारा किया है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिलीवर क्वालिटी वर्क, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। सो उसमें जो है मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, लाइक एज आई से कि भाई जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ मोर, जब आप बैलेंसिंग की बात करते हैं इन योर प्रोफेशनल एंड योर होम लाइफ, तो इट इज़ मोर ऑफ द एनर्जी मैनेजमेंट। आपकी एनर्जी इतनी होगी कि आप जो है दोनों चीज़ों को लेकर चल सकें, तो फिर ही आप जो है एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपकी जो है एनर्जी नहीं होगी, लाइक अगर आप जो है अपने 100% जो एनर्जी है वो अपने ऑफिस वर्क में लगा दें, तो आपके पास तो घर के लिए जो है एनर्जी नहीं बचेगी। सो दैट्स वाई आई से कि भाई 100% एक स्ट्रिक्ट जो है आप बाइफर्केशन नहीं कर सकते
कि भाई ये मेरा जो है 50% का जो टाइम है दिस इज़ फॉर माई होमवर्क, यानी होम से रिलेटेड पर्सनल के लिए है, पर्सनल पर्सनल इन्वायरमेंट में पर्सनल सिनेरियो के लिए है, या 50% है दैट इज़ फॉर दी ऑफिस सिनेरियो। सो इस तरह नहीं हो सकता, यू हैव टू लर्न टू इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन के लिए आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ रिक्वायर्ड। यू हैव टू बैलेंस आउट योर एनर्जी कि आपको किस टाइम पे कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं प्रायोरिटी की बात करती हूँ तो जिस तरह लाइफ में जो है आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, आपकी नीड्स चेंज होती हैं, इन द सेम वे जब आप जो है प्रोफेशनल सेटअप में होते हो तो व्हेन यू आर वर्किंग यू एग्जैक्टली नो कि ओके भाई ये टास्क है, दिस टास्क इज़ एट हैंड, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टास्क, सो यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क, बजाय कि आप ये सोचेंगे भाई जो टास्क एट हैंड है तो चलो वो थोड़ा ही सही वो ख़त्म हो जाएगा, उसको जो है बाद में कर लेंगे, तो बाकी जो टास्क हैं जो कि अभी इतने इमीडिएटली इम्पॉर्टेंट नहीं है उन पर फोकस कर लिया जाए। सो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो एनर्जी है दिस इज़ अनड्यू गिविंग आउट ऑफ एनर्जी, सो आपकी अनड्यू एनर्जी लग जाएगी, वही जो आपकी एनर्जी कहीं और लगनी है। ट्राई टू डू द टास्क विच इज़ एट प्रायोरिटी एंड ट्राई टू फाइनलाइज दैट फर्स्ट, और उसको जो है बाकी टास्क को सेकेंडरी रख लें। एज आई से कि भाई अपने जर्नल्स मेंटेन करें, अपने जो है टाइम टेबल्स बनाएं, अपने जो है स्ट्रैटेजी जो है प्लान आउट करें कि ओके ठीक है आपका जो है महीने का आपने बना लिया, अगर महीना आपको बहुत ज़्यादा लगता है देन स्टार्ट डूइंग इट फॉर 15 डेज़। 15 डेज़ का आप एक स्केड्यूल बना लें, उसमें आप देख लें कि आपके कौन सी जो है टास्क हैं जो कि फ़ौरन जो है रिक्वायर्ड हैं, जिनको करना इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्टली टैकल दोज, देन जो सेकेंडरी हैं या टर्चरी हैं उनको फिर बाद में लेकर आएँ। सेम इज़ विद होम। होम में देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्या होती है, दोज पीपल हु आर लाइक आई वुड टॉक अबाउट women who are working ladies and who are housewives as well. सो होम में देर आर मेनी सिनेरियोज, हो सकता है किसी के बच्चे छोटे हों, हो सकता है किसी के बच्चे जो है यूनिवर्सिटी गोइंग हो सकता है किसी के बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग हो, किसी के बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हो, आजकल तो वैसे ही CIEs चल रहे हैं लोगों के बच्चों के। सो यू हैव टू सी कि भाई आपने घर में व्हेन यू आर एट होम तो आपने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है। यू आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज ऑन कि भाई आपके बच्चे जो है हु आर टेकिंग द एग्ज़ाम्स, तो यू आर देयर टू फुली फैसिलिटेट दैम, फुली इनकरेज दैम, सपोर्ट दैम, ठीक है। मेंटली तौर पे आपने उनको बूस्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम्स। देन आप इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, यू कैन लेट गो सर्टन थिंग्स जो आपके घर पे विच रिक्वायर योर टाइम एज वेल, जिसमें सेल्फ रेस्ट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, इट्स द क्लीनिंग, इट्स द वॉशिंग एंड इट्स मैनी अदर थिंग्स एज वेल। देन आपके जो है लाइक ऑब्वियसली आपके हस्बैंड भी आ जाते हैं, आपका जो बेटर हाफ है, यू हैव टू टेंड फॉर हिज नीड्स एज वेल। बट देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि you have to make out certain list, you have to discuss different things with your better half। अगर वो जो है लाइक ही इज़ ऑल्सो वर्किंग, आप भी वर्किंग है, तो आपस में कुछ प्लान आउट कर लें कि भाई किस तरीके से बच्चों के एग्ज़ाम्स के दिनों में आप एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे। कुछ काम वो ले लें, आपको जो है हेल्प आउट कर दें, आपको फैसिलिटेट कर दें, कुछ काम आप अपने ज़िम्मे ले लें। आई नो अक्सर जो है जो बंदे हैं उनको ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि भाई घर के जो काम है वो औरत की ज़िम्मेदारी है, तो फिर हम यूँ अपने ऊपर कुछ लें। बट यू नो व्हाट, गाड़ी जो है ना 4 पहियों के बगैर नहीं चलती। इन द सेम वे, और वैसे 2 पहियों वाली गाड़ी भी होती है, मोटर बाइक। इन द सेम वे जो घर है ना वो दोनों जो पार्टनर्स हैं, मियाँ बीवी हो गए, उनके बगैर घर नहीं चलता। सो व्हेन partners coordinate and facilitate each another, so the same thing is inherited by the children। बच्चे जो देखेंगे वही अडॉप्ट करेंगे। अगर बच्चे घर में ये देखेंगे कि भाई हमारी ग्रूमिंग, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी एजुकेशन सब कुछ जो है हमारी वालदा कर रही हैं एंड हमारे वाले जो है उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, तो यू कैन वेल इमेजिन कि after when you are in that stage when you require your children to be there for you, apparently they are not there। अगर कोई होगा भी तो आपके डर से उधर होगा, but then they don't have the same synergy, or they don't have the same same जो affection होती है वो उनकी नहीं होती आपकी तरफ,
just because your parents does not mean कि they would be affectionate towards you. For the simple reason कि when they needed the time, you weren't there for them. So this is like it is it's called makafate amal. What you give, it comes back to you. और जो आप तक आता है ना, वो डबल ट्रिपल होकर आता है. So you can't say कि भाई मैंने तो जस्ट टाइम नहीं दिया ना. तो बट ये है कि वो जब डबल ट्रिपल होकर आता है, यू एग्जैक्टली नो कि ये डबल ट्रिपल होकर क्या चीज़ आ रही है वापस. सो द थिंग इज़ कि हर चीज़ में बीइंग पार्टनर्स, बीइंग लाइफ पार्टनर्स, व्हेन यू आर इन दिस रोल टुगेदर, if you people are working, तो you are working for the betterment of your children's future. अपने future के लिए आप लोग काम कर रहे हैं. So you have this goal in mind, okay, we have to build something for our children जो हैं या जो generations हैं जो आगे हैं, जो आपका future है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं. So at the same time आपने चीज़ों को भी मिलजुल के लेकर चलना है. अगर दोनों की जो प्रायोरिटी जो है वर्क हो जाएगी और घर जो है आपकी लीस्ट प्रायोरिटी होगा, तो फिर उसमें जो है सफरिंग जो है, सफरिंग में सफरिंग सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं. एंड चिल्ड्रन आर साइलेंट सफरर्स. जब तक वो छोटे होते हैं वो साइलेंटली ही सफ़र कर रहे होते हैं. इवन बड़े बच्चे भी सफ़र करते हैं. इट्स जस्ट दैट some children are very open and vocal. They tell the parents कि भाई you are not giving us time, but then there are children जो कि सब कुछ अपने अंदर रखते हैं, वो बताते ही नहीं हैं. तो बजाय कि नौबत जो है ज़्यादा ख़राब हो, इट्स ऑलवेज़ बेटर टू ट्राई टू फैसिलिटेट ईच एंड अदर. चाहे आप दोनों जो है किसी भी प्रोफेशन से हैं. सो जो जिस प्रोफेशन से है, देयर आर टाइम्स जब आपने जो है प्रायोरिटाइज़ करना होता है, या आप घर को प्रायोरिटाइज़ करते हैं या आप वर्क को प्रायोरिटाइज़ करते हैं. सो एज़ पार्टनर्स ये आपके आपस में जो है डील होती है कि कौन किस टाइम पे जो है घर को प्रायोरिटाइज़ करेगा या कौन किस टाइम पे अपने वर्क को प्रायोरिटाइज़ करेगा. सो द बेस्ट सिनेरियो इज़ यू हैव टू फैसिलिटेट ईच एंड अदर in order to keep this balance. So when I talk about shifting the mindset, this is the exact mindset which you as partners need to shift. और यही mindset जब आप change करेंगे तो you will see कि कितने ज़्यादा जो है आपको फ़ायदे नज़र आएंगे ऐसे mindset को लेकर, जब अच्छे की तरफ आपका mindset होगा towards positive side. अच्छा, अगर जो है मैं मज़ीद बैलेंस की बात करूं तो देन अगेन देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं जो आपने सेट करनी होती हैं. अब अक्सर क्या होता है कि व्हेन वी आर वर्किंग वी थिंक कि भाई वर्किंग गिव्स द एम्प्लॉयर्स सो टू से एक उनको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि भाई अब जो है वर्क आवर्स जो आप कहेंगे आपके मुताबिक वर्क आवर्स होंगे. सो फॉर दैट वेरी रीज़न सबसे पहले आपने जो है व्हेन यू गो फॉर अ जॉब, तो आप जो है उधर TORs देख लें, क्योंकि TORs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब. जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसके लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है या जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो देख लें कि उसमें क्या टाइम्स हैं. और फिर देन वो जो टाइम है, देयर आर सर्टन टाइम्स कि जब वर्कलोड ज़्यादा होता है, जब किसी किस्म का ऑडिट होता है या बजट होता है या कोई एक्सटर्नल जो है टूर आया हुआ होता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी किस्म के भी इश्यूज हो सकते हैं. बट देन अदर देन दैट यू आर नॉट बाउंड टू वर्क अबव द टाइम जो कि फिक्स होता है. सो अपनी वो जो बाउंड्रीज़ हैं वो पहले से सेट रखें. पहले से आपको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होना चाहिए, अपने TORs का पता होना चाहिए. नो वन हैज़ दिस राइट कि वो आपको जो है रोक कर रखे कि भाई अब आपका टाइम ख़त्म हो गया तो अब आप टाइम के बाद बैठें, ठीक है. सो दिस इज़ द नंबर वन थिंग जो कि आपने करनी है व्हेन इट कम्स टू सेटिंग बाउंड्रीज. देन लर्न टू से नो. हर चीज़ में हामी भरना ज़रूरी नहीं होती. देयर आर थिंग्स जो आपके जो है यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दोज थिंग्स. सो इंस्टेड कि उन चीज़ों को भी जो है अपने ऊपर जो है थोप लें, या मे बी आपके जहन में आए कि मे बी इसको करके जो है शायद बहुत अच्छा जो है मेरी परफॉर्मेंस हो जाएगी, या बहुत आप यू गेट इनटू गुड बुक्स. एट टाइम्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी जो है अपने ही गले पड़ जाता है. सो इट्स ऑलवेज़ बेटर जहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, saying yes to things, you're trying to do things, it's a different scenario. But then there are times when you have to learn to say no.
क्योंकि अगर आप नो नहीं कहेंगे तो जिन लोगों का बस चलता है वो अपना सब कुछ आपके ऊपर डाल देंगे, एंड देन यू विल फील बर्न आउट, यू विल फील प्रेशर, देन यू विल ऑल्सो फील कि यू आर अनएबल टू डू जस्टिस टू योर वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि इस तरह फिर बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है. सो अनदर थिंग इज़ कि आपने जो है देन ये जो बाउंड्रीज़ हैं, यू नीड टू कम्युनिकेट दीज बाउंड्रीज़, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर्स हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों, चाहे वो आपकी फैमिली हो. फैमिली को का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देयर आर टाइम्स कि व्हेन आप जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर नॉट 100% टू पुट इन the family या put in the home, like you're working and then you're coming back home and you're trying to be 100% at home. तो उसमें आप नहीं कर सकते, at times नहीं कर पाएंगे अगर आप जो है एनर्जी को सही तरह मैनेज नहीं करते. So for that reason you have to set a boundary with the family as well. let them know कि भाई कौन से टाइम्स होते हैं जब आपकी एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ही ज़ीरो होते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू पुट योर फुल एनर्जी या 100% इनटू द होम. सो फॉर दैट रीज़न जब आपने एक सामने जो है एक आउटलाइन ले कर देंगे तो आपकी जो फैमिली है दे वोंट बी एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम यू. बट अगर फैमिली में भी जो है आप जो ऑफिस वाला सिनेरियो है वही अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे कि ऑफिस में भी आप जो है 100% रहें और घर में भी आप 100% रहें, तो उसमें जो है नतीजा क्या होगा, उसमें आपकी अपनी सेहत जो है ख़राब होनी शुरू हो जाएगी. सो अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइजिंग एंड पे नहीं दिखराना, क्योंकि सेहत है तो जहान है, और अगर आपकी सेहत ही नहीं होगी तो फिर आप कहीं पर कोई भी काम नहीं कर सकेंगे. आप अपनी फैमिली को नहीं अटेंड कर सकेंगे, आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, आप अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे. और ऑफिस तो आप छोड़ ही दें, फिर वर्क एनवायरनमेंट जो वर्क सेटअप है उसमें भी आपके जो ओवरऑल एनर्जी है वो ख़राब होगी और आप जो फोकस नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दैट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बाउंड्री सेट करें. अच्छा, देन अगर जो है प्रैक्टिकली अगर सर्टन स्ट्रैटेजीज़ की बात की जाए तो लाइक व्हाट आर दो स्ट्रैटेजीज़ जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. Okay, Shazia Nazir, thank you so much for joining and watching this session. And it's quite a long time I have seen you around. So I hope all is well at your end. So practical strategies की जब बात आती है ना, तो आपने जो है ना जिस तरह आप कोई भी टास्क है उसको स्केड्यूल करते हैं, इन द सेम वे अपना जो पर्सनल टाइम है ना उसको भी स्केड्यूल करना शुरू कर दें. अगर आपका पर्सनल टाइम रिक्वायर करता है कि आप जो है हफ्ते में 2 दिन जो है ना घोड़े बेच के सोएं, तो डू दैट, मेक दैट स्केड्यूल. क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी जो है एनर्जी लेवल्स लो हैं, आपकी जो है सेहत ख़राब है, तो उसका किसी को फ़ायदा नहीं है, उसका आपको ख़ुद भी फ़ायदा नहीं है. आप इनफैक्ट इवेंचुअली यू विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम बर्न आउट्स, एग्जर्शन हो जाएगी, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन चले जाएंगे. और इट ऑल डिपेंड्स, लाइक हर एक के जो है डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ होते हैं. बट देन देर आर टाइम्स अगर जो है 30s के बाद की बात की जाए, 35+40 के अराउंड की बात की जाए, तो इसमें एनर्जी लेवल्स आपके डाउन होने शुरू हो जाते हैं. सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि भाई बजाय कि चीज़ें आपके सिर पे पड़ें, उससे पहले ही आप अपना टाइम स्केड्यूल करना शुरू कर दें. अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेल्फ़ केयर करें. अपनी सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़रूरी है. सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह आप कोई भी टास्क स्केड्यूल करते हैं, अपने भी जो पर्सनल केयर है उसको भी स्केड्यूल करना शुरू कर दें. हफ्ते में अगर आपने जो है 2 दिन अपनी नींद पूरी करनी है, 2 दिन नींद पूरी करें. या आपने जो है किसी क्या कहेंगे, आपने और कोई करना है, अपने पर्सनल सेहत से रिलेटेड कोई चीज़ करनी है, तो आप वो कर लें. स्केड्यूल दैट एज वेल. आपने जो है यानी आपने जो है एक कोई प्लान बनाया हुआ है कि आपने अपनी फैमिली के साथ जो है सो एंड सो जगह पे जाना है, तो डू कैरी आउट दैट प्लान. अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि भाई आपने अपने जो फ्रेंड्स के साथ जाना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हों, चाहे वो ऑफिस जो है फ्रेंड्स हों, ऑफिस में भी बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो फीमेल कोलीग्स होती हैं. फ्रॉम फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से कि फ़ीमेल कोलीग्स जो होती हैं आप उनके साथ हैंग आउट करती हैं, मेल्स जो है मेल्स के साथ करते होंगे. बट देन उनके और भी जो है हैंग आउट्स लोग होते हैं, जेंडर्स होते हैं. सो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू से कि दे हैंग आउट स्पेसिफिकली विद द मेल जेंडर, बट फॉर women, मोस्टली women, they hang out with female genders.
बट हर एक की जो है अपनी प्रायोरिटी होती है. आई एम नॉट गोइंग टू से कि कौन किसके साथ हैंग आउट करे. सो बट देन यू नो दीज आर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ कि आपने अपनी सेहत पे अगर तवज्जो देनी है तो अपने टास्क को स्केड्यूल करें, पर्सनल टास्क को. सो अनदर थिंग आप क्या कर सकते हैं कि भाई जो टेक्नोलॉजी है ना, इट्स हेयर टू लीवरेज अस, हमें फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि हमारे जो टास्क हैं, हमारे जो काम है, या हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, हमें वो किस तरह एड आउट कर सकती है, ताकि जो है जो बर्डन है जो अपेरेंटली प्रीवियसली व्हेन देयर वाजंट इनफ टेक्नोलॉजी, या शायद हमें उसकी नो हाउ नहीं थी, तो वी डिडंट नो हाउ टू यू नो डू आवर टास्क, या जल्दी टास्क किस तरह किए जा सकते थे. सो वी यूज़ टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. बट नाउ चूँकि टेक्नोलॉजी है एंड वी आर लीवरेजिंग इट, सो टेक्नोलॉजी को लीवरेज करें, उसको अपने ऊपर सवार ना करें, क्योंकि जब आप जो है टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर सवार होने देंगे तो देन यू विल सी कि वही जो है ना बैलेंसिंग जो है ना ख़राब होगी, एंडलेस माइंडलेस स्क्रोलिंग होगी, आप जो है ऐसी चीज़ें देख रहे होंगे, ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा और वैसे भी अच्छा नहीं होगा. सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू लर्न कि भाई आपने जो है क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, टेक्नोलॉजी को अपने लिए लीवरेज करना है. एंड यू हैव टू यू नो मेंटेन दी इथिकल साइड को प्रैक्टिस करना होगा आपको व्हेन यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. अच्छा, देन आप इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं, मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि भाई हर एक चीज़ आपके बस की नहीं होती, या अगर होती भी है तो यू डोंट हैव टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड. यू कैन ऑलवेज यू नो गेट पीपल, यू कैन गेट द हेल्प ऑफ पीपल, या यू कैन हायर पीपल जिनको आप जो है अपने टास्क जो है डेलीगेट कर सकते हैं. और आपके ऊपर जो इतना ज़्यादा बर्डन होता है, या जो आप अपने ऊपर बर्डन सवार कर लेते हैं, तो आप उस बर्डन को कम कर सकते हैं व्हेन यू आस्क द रेलेवेंट पीपल टू डू सो एंड सो वर्क फॉर यू और ऑन योर बिहाफ, ताकि आपका जो सेहत है वो कॉम्प्रोमाइजिंग एंड पे ना जाए. सो ये कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं. और देन यू नो हाउ कैन यू असेस कि भाई यू आर आउट ऑफ बैलेंस. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि बता देती हैं कि भाई आपका बैलेंस ख़राब हो चुका है. सो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सबसे पहली चीज़ उसमें ये होती है कि यू फील फटीग, हर वक्त आपको थकावट रहेगी, हर वक्त आप जो है ना बस गिरे रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि भाई एनर्जी कहाँ गई, जहन आपका जो है ना फ्लश आउट करा होगा आइडियाज़, और जो है आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा, पर आपका जो जिस्म है वो आपका साथ ही नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आप बर्न आउट हो चुके हैं, आपको क्रॉनिक फटीग हो चुकी है, जिसका ये मतलब है कि वो चीज़ें जो कि आपको प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए थी, आपने उनको प्रायोरिटाइज़ ही नहीं किया. यू वर फोकसिंग ऑल द टाइम ऑन डूइंग वर्क एंड यू वर इग्नोरिंग योर ओन सेल्फ. अपनी सेल्फ केयर आप नहीं कर रहे थे, अपना टाइम आप इस तरीके से स्केड्यूल नहीं कर रहे थे कि आपकी जो एनर्जी है वो आप मैनेज कर सकें, या वो एनर्जी आप अपने ऊपर या कोई अच्छा काम करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकें. सो उसमें जो है दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, यू विल फील फटीग, क्रॉनिक फटीग फील करेंगे, यू विल फील बर्न आउट. मज़ीद जो है आप क्या करेंगे, मज़ीद जो है आपको रिजेंटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, चाहे वो ऑफिस की तरफ से हो पर या फिर आपकी फैमिली लाइफ की तरफ से हो, तो हर चीज़ में आप एक गिल्ट फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो सेहत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी. और जब सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो, like people who are you know working for people, they cannot afford to get sick even for a day, cause they know कि भाई जितना उनके ऊपर जो है काम का लोड है, या जितना उन्होंने अपने ऊपर काम का लोड डाला हुआ है, if they fell on like if they fell sick, ठीक है, या वो बीमार हो जाएं, तो वो जो काम का लोड है वो उनके ऊपर ही रहेगा, वो किसी को और के ऊपर नहीं जाएगा. एंड देन व्हेन दे गेट बैक ऑन देयर फुट, तो फिर वो बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होगा जो कि उनको करके देना होगा. एंड देन यू नो देर आर एवरी काइंड ऑफ एम्प्लॉयर्स, नॉट एवरी एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड कि येस बीमार होना भी जो है यू नो इट्स नेचुरल, और इंसान हो जाता है बीमार. But then all that matters to them is that they want to see the you know output, they want to see the results, they simply do not bother कि भाई आप बीमार होते हैं, आप मरते हैं, खपते हैं, आपकी सेहत ख़राब है, या आपके जो है उम्र का तकाजा है कि यू फील लेथार्जिक या यू फील फटीग.
people want their work. So this is with employers. Not every employer is a good employer, kyunki you know what, at the end of the day employers are also humans and they also have work and they want work to be done. Unless and until they have some kind of contingency plan कि भाई if one falls ill तो they have a alternative कि okay भाई अगर ये नहीं होगा तो फिर इससे काम करा लेंगे. So अगर वो सिनेरियो नहीं होता तो it's you and you are going to do it either टेढ़े होकर, मेढ़े होकर, उल्टे होकर, सीधे होकर. So you have to do it. So for that reason इसलिए मैं आपको कहती हूँ अपने सेल्फ पे फोकस किया करें, अपने टास्क को स्केड्यूल किया करें, अपने एनर्जी को सेव करने की कोशिश करें जो कि आप फ्रूटफुल चीज़ों पे यूटिलाइज़ कर सकें. अच्छा देन जो है मज़ीद और आउट ऑफ बैलेंस किस चीज़ से आपको जो है शो होगा कि यू विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन हॉबीज़. आप वो चीज़ें जो कि शौक़ से करते हैं आप यू विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट. आपका दिल नहीं करेगा वो करने को. अगर आप जो है वॉक शौक़ से करते हैं तो इतना आपकी एनर्जी जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी. यू वॉन्ट फील लाइक डूइंग वॉक. सुस्त हो जाएंगे, एक अजीब किस्म की जो है लथार्जी और लेजीनेस आ जाएगी. यू वॉन्ट वॉन्ट टू डू इट. सो दिस इज़ अनदर थिंग कि व्हेन इस चीज़ से पता चलता है कि भी आप आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हैं. देन मज़ीद क्या है, और रिलेशनशिप्स में भी जो है आपको ख़राबी फील होनी शुरू हो जाएगी. वो भी जो है सही तरीके से नहीं चलेंगी. उधर भी जो है तू मैं स्टार्ट हो जाएगी या छोटी छोटी बातों पे घिट पिट स्टार्ट हो जाएगी. देयर आर सो मैनी सिनेरियोज जो कि हो सकते हैं व्हेन यू आर इनटू रिलेशनशिप्स. हेल्दी रिलेशनशिप्स आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं. एंड मज़ीद इसके अलावा एज आई सेड कि आपकी हेल्थ तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है क्योंकि यू आर यूजिंग यूर अनडाउटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू प्लेसेस जहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है. सो दिस इज़ अनदर थिंग. अच्छा अगर हम जो है ना सक्सेस की बात करें, लाइक एवरी वन हैज़ देयर ओन विजन ऑफ सक्सेस. पर यू नो व्हाट, मेरे लिहाज से जो सक्सेस है ना, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, बल्कि इट्स मोर अबाउट आपकी पर्सनल हेल्थ कैसी है, आपकी जो है आपस की रिलेशनशिप कैसी है, या एज पार्टनर्स आपकी रिलेशनशिप कैसी है, या ये कि आपकी रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ कैसी है, हाउ आर यू टूवर्ड्स योर फैमिली, या ये कि हाउ मच मेंटल पीस डू यू हैव. सो अगर हम जो सक्सेस को रीडिफाइन करते हैं, फॉर मी दिस इज़ व्हाट सक्सेस इज़ कि आपका मेंटल पीस हो. आप यू नो कि भाई यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ. यू नो कि भाई आपके रिलेशनशिप्स हर जो है डायमेंशन में अच्छे जा रहे हैं या ठीक जा रहे हैं. एंड यू आर देयर फॉर द वंस हु नीड यू एट देयर वल्नरेबल टाइम्स, या जो टाइम उनकी रिक्वायरमेंट है या वो टाइम जो कि आपने उनको देना है. एंड यू आर देयर फॉर देम. दिस इज़ व्हाट आई डिफाइन सक्सेस एज. आपको टेंशन नहीं है कि भाई ये जो है काम जो है अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा. आपको इस चीज़ की when it comes to family life, when it comes to family, if you have this peace of mind कि ओके ठीक है मैंने आज घर का ये फलाना पोर्शन साफ़ नहीं किया, पर ये है कि ये जो टाइम था ये मैंने अपने बच्चों के साथ जो है स्पेंड कर लिया, या ये टाइम मैंने बच्चों को जो है ये वाला सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया उसको समझाने में, या ये वाला टाइम मैंने जो है बच्चों को जो है मोटिवेट करने में स्पेंड कर दिया. सो व्हेन यू हैव दिस मेंटल पीस तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी लाइफ जो है ना सक्सेसफुल लगनी शुरू हो जाती है. देन यू आर नॉट इन दिस रेस ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल कि ओके फलाने ने ये अचीव कर लिया तो मैंने तो ये भी नहीं अचीव किया, फलाना इस जो है इस पोस्ट पे पहुंच गया तो मैं तो जो हूँ आई एम वर्किंग इन होम, या आई एम डूइंग अ रिमोट सेटअप, रिमोट जॉब में हूँ, या ये है कि मैं तो सिर्फ जो है बच्चों की जो है तालीम और तरबियत पे फोकस कर रही हूँ. सो यू वोंट हैव दिस टेंशन इफ़ यू हैव दिस बेंट ऑफ माइंड, इफ़ यू रीडिफाइन सक्सेस. सो एवरीवन डिफाइन सक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन सेल्व्स. आई डिफाइन सक्सेस इन दिस वे व्हेन यू नो कि you are mentally at school and you are not in that rat race of comparison with anyone. So this is another thing. And then you know what, at the end what I would want to say कि भाई जो लाइफ होती है ना वो एक जर्नी होती है, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. अगर आप लाइफ को इस तरह लेकर चलेंगे ना कि भाई ये एक डेस्टिनेशन है और मैंने इस मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है,
तो आपको लाइफ ना बहुत मुश्किल लगनी शुरू हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में जो नीड्स होती हैं, जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो भी टाइम चेंज होती हैं। कभी आपकी नीड जो है अपने ऊपर फोकस करने की होगी, बट देन देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल सिचुएशंस। हो सकता है कि कोई ऐसा टाइम हो जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी नीड जो है इट माइट बी फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि आपके जो है ना प्रायोरिटीज़ और नीड्स बन जाएंगी। आपकी हेल्थ आपकी नीड बन जाएगी, देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आपकी जो है नीड बन जाएंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो लाइफ को जर्नी की तरह लेकर चलें, और ये जर्नी आपको जहाँ पर लेकर जाती है आप खुशी खुशी in a happy mood, be positive, be grateful for what life is offering you, because there are many people who are not fortunate to have such kind of life. So always be happy and try to be grateful and try to enjoy the small moments in life, or be at your 100% wherever you are. Life के जिस भी मोमेंट में है, अगर आप घर पे हैं तो बी 100% इन योर होम, अगर आप जो है जॉब पे हैं तो बी 100% एट योर जॉब. So this is all what I wanted to share today, and now if you have any comments, so you can let me know in the comment box. Or agar earlier I was seeing your emojis, so thank you so much for those emojis. And then if you like what I share with you and you like my sessions, you can always give me stars. Stars is one of the way of Facebook of monetization, जिससे जो है the good content it can earn something. So it's totally up to you. If you feel like, you can give me stars as well. और आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उधर भी आपको इसी तरह की वैल्यू एडेड चीज़ें मिलेंगी और वैल्यू एडेड वीडियोस मिलेंगी जो कि आपकी लाइफ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकती हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं in the most good way. So this is all. Now if there's anyone who wants to come at the top of my screen, तो I have to see you, ताकि मैं आपको लाइव सेशन में इनवाइट कर सकूं. और अगर जो है कोई नहीं है तो then let's call it a day, and I'll see you again. I'll see you all again on Wednesday. Till then अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दवाओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.